Mr. Sidhu has claimed that his cordiality with the Imran Khan has worked, and in fact he was also part of you when you went. He was also there. Oh, he was there as a state guest from Pakistan side, where Pakistan Prime Minister invited him to fight elections from Pakistan because they say that the people of Pakistan love him so much that he can fight from anywhere. And it is very clear that what kind of understanding or what kind of compromises took place between them, that even today after the attack on our Jawan, Sidhu is still speaking Pakistan's language and asking his own armed forces for proof about the attacks, which is what Pakistan is doing. So he can claim what he wants, because how in he is with Pakistan generals and Pakistan Prime Minister, the world knows. But I would like to know that if you have got it done from them, but who's got it done from our government? And could the corridor have been made unless our government was? And who passed it in the cabinet? And who put the foundation stone first? And who has now given the work allocation and doing the land acquisition? And who is talking Pakistan's language? So he can say what he wants. He's a Pak agent. He obviously has to speak about Pakistan. रावली का इस्तेमाल करना सिद्धू साहब को कहीं ना कहीं पाकिस्तान एजेंट फिर बोलना आपको लगता है ठीक लगता है केंद्र में? देखो, किसी को अपनी नेशनलिज्म को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, स्पेशली एक क्रिकेटर को जो ग्राउंड पे जाके अपनी हड्डियां तोड़ा के भी अपने देश के लिए मरता है। तो नवजोत सिद्धू एक ऐसा शुरू से सिंस स्पोर्ट्स के साथ अटैच्ड होता है, और ग्राउंड पे तो इनकी वॉर होती थी, पर वॉर रूम जब तुम्हारा मैच खत्म हो जाता था उसके बाद ड्रेसिंग रूम में जफ्फियां भी डालते थे। तो ये उस लेवल पे है कि जब लड़ाई होती है तो उसको तुम इतने ग्रो कर जाते हो लाइफ में, इवन स्पिरिचुअली, कि तुम बिना रीजन के लोगों को दिखाना कि हम गालियां निकाल के बड़े बन रहे हैं, ये बहुत छोटापन होता है। ये तुम्हारा अंदर का छोटापन है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम गालियां निकाल के शायद बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम दिमाग से काम लो, और अगर कंट्री को प्यार करते हो तो कंट्री के हित में नहीं है कि हम वॉर करें। कंट्री के हित में यही है कि अगर टॉक्स के थ्रू, डायलॉग के थ्रू, दोनों कंट्रीज, कितनी बार हर कंट्री का यही रहता है कि लड़ाइयां रहती हैं कंट्रीज में, पर कहीं ना कहीं टॉक्स के थ्रू अगर पीस प्रोसेस हो जाता है तो बहुत अच्छा होता है। पर ऑफ कोर्स तुम नेशनल लेवल पे ये जो बातें हैं तो वो सीनियर्स पे छोड़ देते हैं, हम उसमें ऐसे छोटे छोटे कमेंट्स करने इज नॉट नाइस। If the borders were divided, if Punjab was divided, it was Jawaharlal Nehru's decision. That border could easily have been 2 kilometers more. We still have in many areas of Punjab where our fields are on that side of Pakistan. If that could be done, this Gurdwara, which is 3 kilometers away, could have been here. That was Jawaharlal Nehru's decision. What did Indira Gandhi do? To suppress the Sikhs and to demoralize them after Jawaharlal Nehru broke Punjab up from its royal length that it was from Pakistan to Delhi. Indira Gandhi came and attacked the Golden Temple, killed thousands of innocents there. Then comes her son Rajiv Gandhi, who then for his political reason massacres millions of Sikhs all over. And now Rahul Gandhi speaks the language of Pakistan. So this Gandhi family and this Congress party has always been anti-Sikhs and anti-Punjab, whether it's our capital of Chandigarh, which was supposed to come, whether it's our riparian principle, waters of Punjab, or whether it's the Sikh community. This Congress and Gandhi family has always gone against us. Mr. Sidhu has claimed that his cordiality with the Imran Khan has worked. And in fact, he was also part of you when you went. He was also there. Oh, he was there as a state guest from Pakistan side, where Pakistan Prime Minister invited him to fight elections from Pakistan because they say that the people of Pakistan love him so much that he can fight from anywhere. And it is very clear that what kind of understanding or what kind of compromises took place between them, that even today after the attack on our Jawan, Sidhu is still speaking Pakistan's language and asking his own armed forces for proof about the attacks, which is what Pakistan is doing. So he can claim what he wants, because how in he is with Pakistan generals and Pakistan Prime Minister, the world knows. But I would like to know that if you have got it done from them, but who's got it done from our government? And could the corridor have been made unless our government was? And who passed it in the cabinet? And who put the foundation stone first? And who has now given the work allocation and doing the land acquisition?
And who is talking Pakistan's language? So he can say what he wants. He's a Pak agent. He obviously has to speak about Pakistan. और शब्दावली का इस्तेमाल करना सिद्धू साहब को कहीं ना कहीं पाकिस्तान एजेंट फिर बोलना आपको लगता है ठीक लगता है केंद्र में? देखो, किसी को अपनी नेशनलिज्म को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, स्पेशली एक क्रिकेटर को जो ग्राउंड पे जाके अपनी हड्डियां तोड़ा के भी अपने देश के लिए मरता है। तो नवजोत सिद्धू एक ऐसा शुरू से सिंस स्पोर्ट्स के साथ अटैच्ड होता है, और ग्राउंड पे तो इनकी वॉर होती थी, पर वॉर रूम जब तुम्हारा मैच खत्म हो जाता था उसके बाद ड्रेसिंग रूम में जप्पियां भी डालते थे। तो ये उस लेवल पे है कि जब लड़ाई होती है तो उसको तुम इतने ग्रो कर जाते हो लाइफ में, इवन स्पिरिचुअली, कि तुम बिना रीजन के लोगों को दिखाना कि हम गालियां निकाल के बड़े बन रहे हैं, ये बहुत छोटापन होता है। ये तुम्हारा अंदर का छोटापन है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम गालियां निकाल के शायद बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम दिमाग से काम लो, और अगर कंट्री को प्यार करते हो तो कंट्री के हित में नहीं है कि हम वॉर करें। कंट्री के हित में यही है कि अगर टॉक्स के थ्रू, डायलॉग के थ्रू, दोनों कंट्रीज, कितनी बार हर कंट्री का यही रहता है कि लड़ाइयां रहती हैं कंट्रीज में, पर कहीं ना कहीं टॉक्स के थ्रू अगर पीस प्रोसेस हो जाता है तो बहुत अच्छा होता है। पर ऑफ कोर्स तुम नेशनल लेवल पे ये जो बातें हैं तो वो सीनियर्स पे छोड़ देते हैं, हम उसमें ऐसे छोटे छोटे कमेंट्स करने इज नॉट नाइस। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके जरूर होना चाहिए, और सजा याफ्ता भी जरूर करना चाहिए। लेकिन साथ बाय साथ इसका मुझे जो लगता है कि डायलॉग से, इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर पूरी तरह से करके, कि जो गालियां निकालने से ये नहीं ठीक होगा। इसका एक परमानेंट सोल्यूशन आना चाहिए। कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और कब तक ये खून खराबा चलता रहेगा? और सर, दो देशों के रिश्ते में खटास कहीं ना कहीं। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, मैंने आपको पहले कहा ना कि हर देश में देयर इज द गुड, देयर इज द बैड, देयर इज द अगली। ये जो चंद लोग ये सब कुछ कर जाते हैं, इनको सजा याफ्ता करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कौम को आप चपेटे में ले लो, समझे नहीं? मुझे लगता है कि हर हालत में जो कुछ भी हुआ है उसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, पूरे वर्ल्ड में निंदा होनी चाहिए, और उसका एक, जिसको कहते हैं ना कि उसकी निचाई पूरी गहराई तक जाके उसका आत्मचिंतन होना चाहिए, और एक परमानेंट सोल्यूशन डायलॉग से ज़रूर निकलना चाहिए। प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके, वो प्रेशर ग्रुप जब तक नहीं बनेगा ऐसे ही होता रहेगा। किसी को गालियां देने से ये हल नहीं होगा भाई, किसी को गालियां देने से ये हल नहीं होगा। जहाँ जहाँ आप वियतनाम देख लो, आप और हज़ार जगह देख लो जहाँ जहाँ जंग होती रही है, एक तरफ अगर ये दर्दनाक खौफनाक हादसे होते हैं, दूसरी तरफ उसके साथ साथ डायलॉग भी चलता है, ताकि कोई परमानेंट सोल्यूशन निकले। ये खून खराबे का करतारपुर से क्या लेना देना भाई? वो जोड़ता है लोगों को, दिलों को, आस्था से। जब आदमी पिलग्रिम बन के जाता है, उसकी आस्था से वो अलग ही इंसान होता है। तो मुझे जो लगता है कि हमें चिंतन करना चाहिए और इस जड़ तक पहुंचना चाहिए और जड़ को निकाल फेंकना चाहिए, और इसके लिए सब इकट्ठे होके, एकजुट होके, एक मुठ होके, इंटरनेशनल कम्युनिटी इकट्ठी होके बातचीत करें और इंटरनेशनल प्रेशर बनाएं। सर, शहादत की बात करें, हमारे जवान पंजाब से जी, किस तरह से श्रद्धांजलि? मैं कहता हूं भरपाई तो हो नहीं सकती, लेकिन चाहे पंजाब का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे का है, तो वो हिंदुस्तानी, वो हमारे लहू का हिस्सा है। हमारे परिवार में वो सर्वोच्च है, क्योंकि वो हमारे लिए जाने देते हैं, हमें महफूज रखने के लिए। रातों की नींद हमारी अगर है तो उनकी वजह से है। सो वो मुझे लगता है कि उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा ऑनर मिलना चाहिए, और उनके परिवारों को सहयोग मिलना चाहिए कि इस दुख के समय पे बहुत से कंधे हैं जो ये दुख बांटेंगे। मेरी बात जो होती है ना, उसको डिस्टॉर्ट किया जाता है, एक लाइन बोली जाती है उसमें, उसको पूरी तरह से दिखाया नहीं जाता, क्योंकि बहुत लोग भयभीत होते हैं, समझ रहे हो ना, इनसिक्योर भी होते हैं। लेकिन मैंने यही कहा था, जो कल कहा था, आज भी वहीं खड़ा हूं कि आतंकवाद का ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, ना कोई देश है, ना कोई जात है, और
जैसे लोहा लोहे को काटता है, आग आग को काटती है, सांप जब डंक मारता है तो उसका एंटीडोट सांप का विष है, वैसे ही कुचला जाना चाहिए कहीं पे भी। और यही स्टेटमेंट कल थी, लेकिन इसमें से एक चीज उठा लेते हैं वो, और वो चीज उठा के फिर सुन, मैं आगे बता रहा हूं आपको, आगे मेरी पहली बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप जो निर्णय को करें वो आपके ऊपर है। आप बहुत सयाने लोग हैं। जिस डायलॉग की बात की थी कि 70 साल से ये बंद नहीं हुआ, जब कोई पॉलिटिशियन जाता है तो शहर जाम हो जाते हैं, जब 3000 जवान जाता है तो भाई ट्रैकर क्यों नहीं चलता? तो फिर भाई उन जवानों की जो हमारी सुरक्षा के लिए रात दिन लगाते हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता? और उसका एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट आता है। क्यों उनको बाय एयर नहीं ले जाया गया? सवेरे 3 बजे से वो चलते, ये चिंतन के विषय हैं। सारा देश एकजुट होकर लड़ रहा है, लेकिन क्या इन 3-4 लोगों की वजह से आज करतारपुर साहब के कॉरिडोर पे क्वेश्चन मार्क लगेगा? प्रधानमंत्रियों के किए हुए निर्णय पे क्वेश्चन मार्क लगेगा? बाबा नानक भी बाबर से लड़े थे, बाबा नानक के चरणों की धूल है ये नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन बाबा नानक की फिलॉसफी क्या थी, क्या है, ये सारी दुनिया जानती है।